तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, हम आज अपने साइंस की क्लास 9 सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। साइंस क्लास 9 सीरीज बहुत दिनों से रुकी हुई थी। इसके जो पार्ट 3 जब मैंने डाला था, उसमें हमने डिफ्यूजन और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर और केल्विन और उसके अलावा सेल्सियस स्केल के बारे में भी पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट 4 यानी लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे। उसमें हम उसके आगे की बात करेंगे। वो बहुत दिन से रुकी हुई थी। उसका रीज़न था कि हम और सब सब्जेक्ट जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियोस और अफगानिस्तान सीरीज, इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस थे, पर साइंस भी उतना ही जरूरी है जितना ये तीनों। तो आज से हम इसे कंटिन्यू करेंगे और इसे हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे भी आएंगे क्योंकि साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है 9th का, और सिर्फ 9th नहीं, उसके बाद हमें 10th भी कवर करना है। आइए हम शुरू करते हैं साइंस क्लास 9। तो चैप्टर 1 हम कर रहे थे। सो वी आर डूइंग चैप्टर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, एज वी ऑल नो। तो इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स टिल नाउ, सो let's quickly revise it. Firstly, we have covered that what is matter. Then we have covered what properties of matter, states of matter based on its physical properties like solids, liquids, and gases. We have also covered in brief about the states of matter based on its chemical properties like elements, compounds, and mixtures. But we have only covered their names only. मतलब सिर्फ हमने उसका नाम जाना है, उनके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, as I have told before in the first and second lecture. So then we have studied about properties of solids, properties of liquids, and properties of gases. Then we have studied about diffusion in gases, diffusion in liquids, and diffusion in solids. Then we have studied about SI units of temperature, Kelvin scale, Celsius scale, relation between Kelvin and Celsius scale. We have studied. Now we are going to study. So we have covered almost not more than half of this chapter, half part of this chapter. Now we have to cover only some topics like effect of change of temperature, latent heat, sublimation, and effect of change of pressure, etc. So we will cover firstly effect of change of temperature. Now before studying effect of change of temperature, we have to study about change of state of matter, to solid, to liquid, to gas. So what are the factors which change the states of matter into solids, from solid to liquids, from liquid to gases, again from gas to liquid, from liquid to solid? So there are two factors. The first factor is temperature. So if we change the temperature, then the state of matter will change. For example, when we heat ice, so when we heat ice, then the temperature of the ice, temperature of the H2O in solid form, take an example in the chemical name H2O. So if we increase the temperature of H2O in solid form, then it will convert into liquid and we call it water, and in solid form of H2O we call it ice. तो मतलब H2O का जो सॉलिड फॉर्म रहता है उसको हम आइस बोलते हैं, और H2O का जो लिक्विड फॉर्म रहता है उसे हम वाटर बोलते हैं, और H2O का जब गैसियस फॉर्म में रहता है उसे हम स्टीम बोलते हैं। तो अगर आपको H2O के सॉलिड फॉर्म को लिक्विड में करना तो आपको हीट करना होगा, लिक्विड को गैस करना हो तो आपको और फर्दर हीटिंग करनी होगी। तो वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू कन्वर्ट द स्टेट्स ऑफ वाटर और H2O. Similarly, effect of change of pressure is another factor, the second factor. So if we, because the particles of gas have spaces between them, or liquids have some less space than gas but they have spaces between them. So if we apply pressure on the steam by applying a piston, it is an activity that we will study later on. So then the particles of water or H2O will come closer and come closer as much as they are in liquid.
so it will liquefy into water. So that is the example of effective change of pressure. There are two factors for the change of state of matter. One is temperature and second is pressure. As we can see that in a normal temperature or in a normal pressure, the same substance can exist in all three states of matter by changing the temperature. मतलब एक ही प्रेशर पर उतना ही प्रेशर पर, जैसे 2 एटीएम पर ही 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही जो चेंज ऑफ स्टेट है वो हो सकता है टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने से. फॉर एग्जांपल एट नॉर्मल प्रेशर जो रूम में होता है उसमें आप आइस भी रख सकते हैं, H2O सॉलिड फॉर्म आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो. उसके बाद उसको फर्दर हीट करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा. उसके बाद आप फर्दर मेल्ट करने के बाद वो वाटर पे भी उसी रूम प्रेशर पे हो जाएगा. फिर हम अगर उसको फर्दर हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एट द सेम रूम प्रेशर. तो उस प्रेशर पे ही सिर्फ टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने से ही उसके सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस बन गया. उसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. So there are 4 processes involved in effect of change of temperature: melting, boiling, condensation, and freezing. So what are these 4 processes? So these are simple processes. First is melting. It is solid to liquid change. When ice changes into water, for example. Another is boiling. Liquid to gas change. When water changes into steam. Then third is condensation. It is in vice versa of boiling. When the gas changes into liquid. बॉइलिंग में क्या था? बॉइलिंग में लिक्विड गैस में चेंज हो रहा था, कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में चेंज होगा. एंड द लास्ट वन इज फ्रीजिंग. इट इज वाइस वर्सा ऑफ मेल्टिंग. व्हेन द लिक्विड स्टेट चेंज इनटू सॉलिड. इसमें सॉलिड टू लिक्विड चेंज, लिक्विड टू गैस चेंज, गैस टू लिक्विड चेंज एंड लिक्विड टू सॉलिड चेंज, फ्रीजिंग. यहाँ पे जो ये टेम्परेचर कुछ लिखे हुए हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के. तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी आफ्टर सम टाइम. सबसे पहले बात करते हैं हम, प्रोसेस है फ्रीजिंग, मेल्टिंग का. तो इट इज द मेल्टिंग की बात करेंगे. व्हाट इज मेल्टिंग? सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड सब्सटेंस into liquid substance at its melting point is called melting. ये एग्जांपल मेल्टिंग का. तो इसमें ये जो टेम्परेचर दो लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो टेम्परेचर यहाँ पे लिखे हुए हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसके मेल्टिंग पॉइंट पर अगर सॉलिड से लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो रहा है तो वो प्रोसेस होता है मेल्टिंग. कोई सब्सटेंस, ये मैंने जो वाटर का एग्जांपल दिया था ये चारों को बताते हुए, इट इज एन एग्जांपल बिकॉज कॉमनली वी डिस्क्राइब दिस विद वाटर, एग्जांपल ऑफ वाटर. बट किसी भी सब्सटेंस के लिए मेल्ट हो सकता है. वैक्स भी मेल्ट होता है, आयरन भी बहुत ज्यादा हीट करने में मेल्ट होता है. तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? What is the melting point of ice or H2O in solid form? It is 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाता है. ये 63 डिग्री सेल्सियस है. ये आप मुझे बताइए ये क्या, किसका मेल्टिंग पॉइंट है? इट इज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, मोम का है ये. और ये जो सबसे बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको 1535 डिग्री सेल्सियस, इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन. बिकॉज आयरन इज ए सॉलिड सब्सटेंस and the force of attraction between the particles of iron is very very strong, and because of that very strong heat, very strong heat is required to melt iron, and that's why the temperature is 1535 degrees Celsius. Now you can imagine about what amount of heat is required to melt iron. So it is called melting. Now we will describe how a solid substance melts into liquid. So when the heat is provided or heat is applied to the solid substance,
Like suppose take an example of iron. We take an iron rod and heat it on a burner. सो बर्नर पे तो वो उतना हीट अप्लाई नहीं कर पाएगा, मतलब बड़े से फैक्ट्री में यहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता है, उसको किसी भी तरह से वो हीट करते होंगे उनके अपने मशीनरी से जो भी होंगे। सो वो फर्दर हीटिंग करते करते जब वो हीट का टेम्परेचर, वो अपना टेम्परेचर नापने का वहाँ पे एपरेटस होगा उनका मैकेनिज्म। सो जो फर्दर हीटिंग करते करते जब ये 1535 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, तो उस समय तक उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स का, वो टाइटली हेल्ड रहता है। सपोज दिस इज एन आयरन रॉड और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जकड़े हुए हैं, एकदम तेज। वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड चेंज करने में जो पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, as we have studied that the particles of solids are very much closely attracted to each other than liquids. So solid से liquid में बदलना है तो उनके particles को दूर ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए फोर्स ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। और वो ब्रेकिंग तब होता है आयरन में जब वो इतना टेम्परेचर हो जाता है, तब, उससे पहले नहीं होता है। वैक्स में 63 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, आइस में 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। आइस को तो हीट करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप आइस को फ्रिज में से बाहर निकाल दें और उसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा देर रख दें तो वो आफ्टर सम टाइम इट विल मेल्ट। हाँ, उसे अगर आप किसी उसको थोड़ा हीट दे तो वो रूम टेम्परेचर से जल्दी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप मेल्ट हो सकता है। पर आयरन रॉड को अगर आप रूम पे रख दें, रूम टेम्परेचर पे, तो वो मेल्ट नहीं होगा। इट रिक्वायर्स वेरी मच अमाउंट ऑफ हीट ऑफ 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एनर्जी, जितनी डिग्री सेल्सियस, जितना हीट एनर्जी चाहिए उस सॉलिड सब्सटेंस को, के पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके लिक्विड में बदलने के लिए, उतना टेम्परेचर हमें चाहिए होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? सो वी विल नाउ डिराइव द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच a solid substance melts to form liquid substance at atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पहले के डेफिनेशन में बोला था, तो वहां पे भी होगा। वहां पे अगर आप नहीं भी रखते एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेल्टिंग पॉइंट के डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम आना चाहिए, क्योंकि एज वी हैव स्टडीड दैट दी मैटर को चेंज करने में, उसके स्टेट को चेंज करने में दो फैक्टर्स काम करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ पे हम टेम्परेचर का चेंज पढ़ रहे हैं तो हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक रेफरेंस लेके कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन हो गया, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट्स और चेंज इनटू लिक्विड सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। Examples from melting point of ice is 0 degree Celsius, melting point of wax is 63 degree Celsius, and melting point of iron is 1535 degree Celsius. अब हम बात करेंगे the second process which is boiling. So what is boiling? So जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए मेल्टिंग की जरूरत होती है, उसी तरह जो लिक्विड स्टेट आ गया उसको बदलने के लिए हमें बॉइलिंग की जरूरत पड़ती है गैसेस स्टेट में। तो इसका एक हम डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस और वेपर। इसका एक और नाम इस प्रोसेस का व्हिच इज कॉल्ड वेपराइजेशन इनटू गैस और वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है वैसे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, जैसे लिक्विड सब्सटेंस है, अब वो किस पॉइंट पर, जैसे लिक्विड सब्सटेंस जैसे वाटर मान लीजिए, तो किस, जैसे कि उस वाटर का हमें पता चल गया, जब वैक्स का मालूम चल गया कि 63 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट करता है, पर वो बॉयल कितने डिग्री सेल्सियस पर करता है कि वो भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे एक लिक्विड सब्सटेंस गैस में, जहां से सबसे पहले एक लिक्विड सब्सटेंस गैस में परिवर्तित होना शुरू होता है। तो इसका डेफिनेशन हो सकता है द प्रोसेस, सो नॉट प्रोसेस नहीं, so the temperature at which a liquid substance changes into vapors or gas at atmospheric pressure। atmospheric pressure होगा डेफिनेशन में, क्योंकि
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है क्योंकि हमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पड़ रहा है यहाँ पर। तो at atmospheric pressure the temperature at which a liquid substance changes into vapors or gas at atmospheric pressure is called its boiling point. For example, the boiling point of water is 100 degree Celsius. क्योंकि हम मैंने आइस नहीं बोला, आइस इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो आइस फॉर्म में नहीं है। वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है 0 डिग्री पर, तो उस समय से वो वाटर के श्रेणी में आ गया, यानी H2OL लिखेंगे उसको, H2O in liquid form. So the boiling point of water is 100 degree Celsius. The boiling point of alcohol is 78 degree Celsius. तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है 78 डिग्री सेल्सियस। और जो एक्सट्रीमली हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसमें यहाँ पे 357 डिग्री सेल्सियस, ये आपको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट है ये। इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा साइंस में, क्योंकि बुक्स में दिए हुए हैं और बहुत लोग बुक्स को उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। ये है मरकरी का, जो थर्मोमीटर में यूज होता है मरकरी, उसी का बॉइलिंग पॉइंट है ये 357 डिग्री सेल्सियस। तो इसको बॉइलिंग बोलते हैं। इसका भी वही प्रिंसिपल है कि व्हाई द लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग, ऑन फर्दर हीटिंग। उसका फंड यही है कि जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो उनके भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। एज वी हैव स्टडीड बिफोर दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मच ग्रेटर देन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। तो पार्टिकल्स ऑफ उस लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो उनके लिक्विड के पार्टिकल्स को हमें और दूर ले जाना होगा एक दूसरे से, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होगा। लिक्विड के पार्टिकल, उसको तोड़ने के लिए हमें हीट अप्लाई करना होगा, और वो जब हीट अप्लाई होता है तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होते हैं, और उस ब्रेकिंग डाउन की वजह से वो गैस में, और जब वो सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाते हैं, जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, सब समझ जाइए, यहाँ से ये दो पार्टिकल्स हैं लिक्विड में है, अभी इसमें हम हीट अप्लाई करेंगे। हीट हमने अप्लाई किया तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये यहाँ यहाँ आएंगे, और एक सर्टेन जो फिक्स्ड जगह है, अगर यहाँ पे दोनों अगर आ गए, इतने दूरी हो गया तो ये गैस में बदल जाएंगे। जब ये इतने दूरी पे आ जाएंगे तब ये गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इनको इतने स्पेस से इतना स्पेस लाने में जितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो वही सेम प्रिंसिपल है। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग के डेफिनेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। अगर आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग को ठीक से पढ़ लिया है, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग पढ़ना बहुत आसान है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको मेल्टिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पढ़ लिया ठीक से, फिर कंडेंसेशन और फ्रीजिंग पढ़ने की जरूरत क्या है? इतना याद रखना है कि ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं, तो वाइस वर्सा सब प्रोसेस हो जाएगा। फिर भी हमें बताना तो है, ऐसे वाइस वर्सा बोल के हम बता नहीं सकते हैं। तो हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो इन कंडेंसेशन it is the vice versa of boiling, it is gas to liquid change। तो melting, condensation का definition क्या होगा? the process of changing a gas or vapor into a liquid substance on cooling। यहाँ पे ध्यान रखना है, इन दोनों के definition में हमें लिखना होगा on heating, इसके definition में हमें लिखना होगा on cooling। The process of changing a gas or vapor into a liquid substance is called condensation on cooling, मतलब कूल करने पर। तो ये कैसे होगा कंडेंसेशन में? फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वाटर से ही शुरू करते हैं। वाटर में जो स्टीम होता है, स्टीम को आप देखेंगे तो वाटर वेपर, जैसे कि अगर इसका सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, आप पानी गर्म करते होंगे अपने बर्नर पर, तो जब पानी गर्म करते हैं तो उसका जिस भी बर्तन में करते हैं, जिस भी यूटेंसिल में करते हैं, उसके ऊपर उसको ढकने के लिए आप किसी दूसरे बर्तन का प्रयोग करते होंगे। जो नहीं करते तो करके देखिएगा, उसमें होता क्या है, वो जो बर्तन होता है वो ठंडा रहता है, जो ढकने का काम होता है, कवर करने का काम होता है, और वो जो स्टीम जब निकलता है उस बर्तन जिससे अपने आप गर्म कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर रखेंगे तो स्टीम जो पार्टिकल्स हैं वो उस बर्तन पे लगेगा, और उस बर्तन पे लगने से देखिएगा वाटर ड्रॉपलेट्स
बन जाएगा। आपने देखा होगा वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों बनता है, वो स्टीम का जो टेम्परेचर वो गर्म है, वो ज्यादा ऊपर जाता है, और जो जिस बर्तन से आप ढक रहे हैं उसका टेम्परेचर अभी ठंडा है, तो जैसे ही वो स्टीम उस पर लगता है तो वो कंडेंस हो जाता है, कूल हो जाता है, उसकी जो कूल हो जाता है वो उसकी कूल होने से वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है, यानी वो गैस स्टीम फॉर्म में था वो वाटर में बदल गया। इस प्रोसेस को भी हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और इसका भी अगर आप फंडा जानना चाहें कंडेंस, तो ये भी वही प्रिंसिपल है, यहाँ पे वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा क्या है, हमें गैस से लिक्विड में अगर बदलना है, तो अगर हमें गैस से लिक्विड में बदलना है तो सिंपल ये है कि गैस के पार्टिकल्स क्या है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उन्हें पास पास करना है। पास पास करने के लिए हीट तो कर नहीं सकते हैं, हीट तो वो तोड़ता है, कूल ही करना हो, कूल करेंगे तो वो आपस में आ जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। या फिर गैस को इसी तरह से एक प्रेशर वाला भी होता है, तो प्रेशर वाले में कंडेंसेशन नहीं करते हैं, उसको हम ऐसे दाब देते हैं पिस्टन के मदद से, उससे वो लिक्विफाई मिलता है, उनके पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, दबाव। एक ये तरीका है और ये इफेक्ट ऑफ चेंज टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि इट इज वाइस वर्सा ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का एक वाइस वर्सा है। उसके बाद हम बात करते हैं अब फ्रीजिंग की। सो व्हाट इज फ्रीजिंग? इट इज एन वाइस वर्सा प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड चेन। तो सॉलिड से लिक्विड में यहाँ बदला, लिक्विड से गैस में यहाँ बदला, फिर गैस से लिक्विड में यहाँ बदलेंगे, तो फिर लिक्विड से वापस सॉलिड तो लाना होगा ना, शुरुआत सॉलिड से किया था हमने, तो घूम फिर के वापस सॉलिड पे लाना होगा हमें चीज को। वाटर ही है, वाटर को सबसे पहले हमने आइस से वाटर में बदला, देन वाटर टू स्टीम में, फिर अब स्टीम से हमें वाटर में बदला हमने, अब इस वाटर को फिर से आइस में लाना होगा। आइस में हम फ्रीजिंग कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड सब्सटेंस बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप वाटर को फ्रीज करना है तो आप ऐसे फ्रीज नहीं कर सकते हैं, उसे रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए फ्रीजर के अंदर, तो फ्रीज हो जाएगा। तो ये फ्रीजिंग का भी वही सेम प्रिंसिपल है जो इसमें है कि मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड से सॉलिड में करने के लिए उसे और नजदीक लाना होगा, और उसके लिए रेफ्रिजरेटर में हम रखेंगे तो वो पार्टिकल्स और नजदीक आ जाते हैं, और जिससे ये सॉलिड में बदल जाता है। सो यहाँ पे टेम्परेचर हमें डाउन करना होता है, मेन फंडा यहाँ है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर ज्यादा करना होता है क्योंकि इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका टूटेगा और ये स्टेट ऑफ मैटर बदलेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग, हीटिंग और कंडेंसेशन। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेल्टिंग और बॉइलिंग ये दोनों प्रोसेस में you have to हीट की जरूरत है, और इन दोनों प्रोसेस में हमें कूल। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर कम करना है, इससे ये वाइस वर्सा में आ जाए। तो फ्रीजिंग करने के बाद ये वापस आइस बदल जाएगा, तो इससे वापस फिर सॉलिड में बदल जाएगा, फिर हम ये प्रोसेस कर सकते हैं उसके लिए। तो ये चार प्रोसेस होते हैं कि किस तरह से सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, फिर गैस टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू सॉलिड ये टेम्परेचर बदलता है। इसे हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके एक्टिविटीज होते हैं जो मैंने आपको बताया। एक्टिविटीज सिंपल, आप वाटर से भी करके इसको देख सकते हैं। सबसे पहले वाटर लें सॉलिड में, उसको मेल्ट कर बाहर निकालें आइस को, वो मेल्ट हो जाएगा वाटर में ऑटोमेटिकली, तो उसको हम मान लेंगे मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। उसके बाद उसको हम गर्म करेंगे, बॉइलिंग, वो स्टीम में बदल जाएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और वो बॉइलिंग प्रोसेस हो जाएगा। कंडेंसेशन करने के लिए मैंने आपको बताया ही, वो जो बर्तन के ऊपर ढकने वाला जो दूसरा बर्तन होता है वो ठंडा रहता है, उस पर जब वो जाता है तो वो कंडेंसेस होके ठंडा होके वो वापस अपने सॉलिड में आ जाता है, और फिर इसको उसी वाटर को ऐसे ही करके उसको वाटर को हम वापस फ्रीजर में डाल देंगे तो वो फ्रीज होके वापस आइस बन जाए। तो ये सिंपल एग्जांपल वाटर का है। इससे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी होते हैं पर उसे अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं। ऐसे पढ़ने के तौर पे वाटर ही सिंपल से हम शुरू करते हैं। अभी क्लास 9th में हम सिंपल से शुरू करेंगे, क्लास 9th में, क्लास 12th, अभी 11th जैसे बड़े बड़े एग्जांपल्स और नहीं देख सकते। क्लास 11th में आपको जैसे ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर अराउंड अस, प्योर, ये सब इसमें नहीं। क्लास 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर ही ये चैप्टर फर्स्ट, सेकंड चैप्टर,
थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही घुसा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट सब फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है। एक ही चैप्टर में लगभग 4 से 5 चैप्टर का उनमें कॉन्सेप्ट है, तो वो एकदम वास्ट सिलेबस हो जाता है उससे। अभी जितना हमें समझना है हम उतना ही समझते हैं। तो हमने अभी क्या क्या बात की है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सॉरी मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। लाइन से याद रखना जरूरी है कौन किससे क्या होता है। जैसे कि मैंने मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन भी बोल सकते थे, पर वो उल्टा हो जाता। मेल्टिंग होता है, फिर बॉइलिंग, फिर कंडेंसेशन, फिर फ्रीजिंग, ऐसे बोल सकते हैं। सो मेल्टिंग से बॉइलिंग करने के लिए हीट की जरूरत है, मेल्टिंग से बॉइलिंग के लिए हीट की जरूरत है। और जैसे ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेल्टिंग से बॉइलिंग के लिए हीट की जरूरत है, फिर बॉइलिंग से कंडेंसेस करने के लिए कूलिंग की जरूरत है। कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है लिक्विड, उसको फ्रीज करने के लिए भी हमें कूल की जरूरत है। हाँ, आइस से फिर हम जब मेल्टिंग में आएंगे, जैसे ये प्रोसेस में फिर हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। फ्रीजिंग से मान लीजिए यहाँ पर अगर हम वापस मेल्टिंग पे आते हैं तो हीट ये फिर से यहाँ पे लगेगा। तो ये प्रोसेस याद रखने बहुत जरूरी होते हैं। आगे हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ना है, लेटेंट हीट पढ़ना है, सब्लिमेशन पढ़ना है, तो वो सब भी हम पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लेटेंट हीट और सब्लिमेशन ये सब पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कितने लोग इसको एक फुल वीडियो में कवर कर देते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, लेटेंट हीट, सब्लिमेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इस हम पूरे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर्स है 9th क्लास में, पर इसका वास्ट सिलेबस है। अब हम यहाँ पे लेटेंट हीट का जो टॉपिक है वो समझने वाला है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये बहुत बड़ा टॉपिक था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग बहुत बड़ा टॉपिक था, क्योंकि इसमें 4 प्रोसेस थे, हर प्रोसेस में इतना था। लेटेंट हीट में सिर्फ 2 प्रोसेस है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिर्फ 2 प्रोसेस थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सब्लिमेशन भी एक सिंपल टॉपिक है, जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे सॉलिड से पहले लिक्विड में बदलेंगे, फिर लिक्विड से गैस में, फिर गैस टू लिक्विड, देन लिक्विड टू सॉलिड। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं बिना लिक्विड में बदले। जैसे कपूर जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं वो, उसके अलावा और वही सेम सब्सटेंस वापस गैस से डायरेक्ट सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें कि गैसेस को आप कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद वो लिक्विफाइड हो सकते हैं। तो कैसे लिक्विफाइड हो सकते हैं वो हमें पढ़ना होगा। फिर जो स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे होते हैं, इसे 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो नए नए खोज हुए हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ना है। उनके नाम क्या हैं, तो उसको हम किसी चैप्टर से पढ़ सकते हैं, मैटर अराउंड स्फीयर में भी पढ़ सकते हैं उसको, और इसमें भी पढ़ सकते हैं। वैसे क्योंकि उसमें भी मैटर की बात है, इसमें भी मैटर की बात है, पर उसमें जो मैटर की बात है उसमें एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर है, तो उस पे पढ़ना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम उसको पढ़ लेंगे। जैसे प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सबको हम कवर करेंगे डिटेल में, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक हम छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन आपको इस वीडियो के साथ बने रहना इस सीरीज के साथ। अगर आपने इस सीरीज की कोई वीडियो पहले नहीं देखी है तो आपको देखना होगा, बिना देखे वो काम नहीं पाएगा। और अनदर थिंग इज दैट कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो वीडियोस हैं और जो अफगानिस्तान सीरीज में सिर्फ एक वीडियो है दी हुई है, और इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो में डिले हो रही है, तो वो डिले हो रही है, उसके लिए आप चिंता ना करें, उसको भी हम कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। जैसे कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो में ही कहा था, फर्स्ट वीडियो में जब मैंने सिलेबस पूरा लिखवाया था यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, कि वी विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सिलेबस एंड नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड। कुछ भी छूट नहीं जाएगा, और ईच एंड एवरी सिलेबस, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस सिलेबस विल बी कवर्ड।
अफगानिस्तान सीरीज भी जब मैंने शुरू किया है तो कुछ सोच के शुरू किया होगा, और उस सोच के साथ ही हम उस पूरे वीडियोस को कवर करेंगे। हमने भी अफगानिस्तान में उसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि उसकी हिस्ट्री में क्या हुआ। अब उसमें हमें सोवियत इन्वेजन, सोवियत का जाना, यूएस इन्वेजन, यूएस कैसे 20 साल रहा है अभी पढ़ेंगे, कैसे 1996 में तालिबान आया, कैसे उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको एग्जीक्यूट किया गया यूएन के ऑफिस से निकाल के, यूएन देखता रह गया, और अशरफ गनी क्यों भागे, अशरफ गनी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो पैसा लेके गए, भाग गए हैं नेशनल ट्रेजर से, क्या वो सच है कि झूठ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान के फ्यूचर में क्या होगा वो भी चर्चा करेंगे उन वीडियो। अभी हम अफगानिस्तान के बारे में बात नहीं करते हैं, इसमें भी साइंस के बारे में बात करते हैं, तो इससे भी हम पूरी तरह से कवर करेंगे। अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बाकी वीडियोस को भी करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।